कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर 2। प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स डिस्कस with respect to their detailed electronic configuration. Next point, atomic and physical properties trends of group first and second. Okay, पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट इसमें हम ग्रुप one, that is first element, that is alkali metals. Okay, first, what are the elements present in it? Next, properties, variation of atomic radius. Next, variation of ionic radius. Next one, ionization enthalpy. Next property, electronegativity. Next, melting point, and last one, density. 1 2 3 4 5 6 properties का study है. We know what are the important alkali metals: lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. Francium is the radioactive elements. We have discussed about their atomic number and their detailed electronic configuration in the lecture first. Next, atomic radius in picometer, ionic radius also in picometer. We know generally down the group, as we move from top to bottom in a group, atomic number of the element increases, so that electron also increases, and electron adding new and new shells, so that down the group shell number increases, so that atomic radius or ionic radius both are increases. Lithium atomic number 3, sodium 11, configuration 21, here configuration 281, shell 2, shell 3, shell 4, 5, 6, 7. As we move from top to bottom, atomic number increases, electron also increases, number of shells also increases, so that down the group what happened? Top to bottom एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, ऐसे इंक्रीज हो रहा है. यहां से एरो किया मतलब ऐसे जब हम जा रहे हैं टॉप टू बॉटम, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? इंक्रीजेस. अपवर्ड एरो है तो इंक्रीज समझना है. ओके, आयोनिक रेडियस आल्सो व्हाट? इंक्रीजेस. अंडरस्टैंड? आपको कभी कभी एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर पूछ लिया इनमें तो समझ में आना चाहिए. ऑर्डर लिख सकते हो आप: लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. Down the group atomic radius increases. This is the order of atomic radius or the ionic radius. Understand? Next, ionization enthalpy or the ionization energy. Unit is kilojoule per mole. We know ionization enthalpy inversely proportional to atomic radius. Correct? We have already discussed. As we move from top to bottom, atomic radius increases, so that ionization energy top to bottom क्या हो जाएगा? Decreases, because lithium is smaller, sodium is larger, valence electron, nucleus having strong attraction, nucleus having weak attraction, electron easily removed, मतलब less ionization energy, more ionization energy, so that ionization energy decreases as we move from top to bottom in a group. Electronegativity, we also know electronegativity inversely proportional to atomic radius. Again same concept. As we move from top to bottom in a group of alkali metals, again electronegativity decreases. Melting point, melting point down the group, again here decreases. lithium having more melting point, less. अब melting point का रीजन ये होता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए लिथियम का शीट है, लिथियम का साइज स्मॉलर है इससे. मान लीजिए हम रुबिडियम का ले रहे हैं, लार्जर साइज. करेक्ट? स्मॉलर द साइज ऑफ मेटल एटम मींस न्यूक्लियस अप्लाई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम्स. तो इसका न्यूक्लियस इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रखेगा, इसका न्यूक्लियस इसके वैलेंस पे थोड़ा वीक अट्रैक्शन रखेगा ड्यू टू लार्जर साइज.
More attraction, strong bond. Weak attraction, weak bond. Strong bond means they have higher melting point. Weak bond means they have lower melting point. तो साइज जैसे बढ़ेगा डाउन द ग्रुप जाते वक्त, तो मेटल मेटल का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो बढ़ जाता है, सो दैट उनमें का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, जो भी वेन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन समवॉट डिक्रीजेस, सो दैट देयर मेल्टिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेस. तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस. तो देख सकते हो स्टूडेंट्स, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, आयोनिक रेडियस डिक्रीज. अदरवाइज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट ऑल आर डिक्रीजेस, नो एनी एक्सेप्शन. 8 यहां तक तो कोई एक्सेप्शन नहीं है. नहीं तो जनरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत से एक्सेप्शन कंसेप्ट होते हैं, तो यहां तक अभी कोई एक्सेप्शन आया है क्या? नहीं. लास्ट पढ़ते स्टूडेंट्स डेंसिटी. वी नो डेंसिटी हैविंग फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम. एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, रेडियस इंक्रीजेस मींस देयर वॉल्यूम इंक्रीजेस. तो यहां पर वॉल्यूम हो रहा है इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस मींस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस, सो दैट एटॉमिक मास आल्सो इंक्रीजेस. अब देखिए डेंसिटी डिपेंड है दो फैक्टर पे, मास एंड वॉल्यूम. टॉप टू बॉटम जा रहे हैं अब तो रेडियस बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर के साथ साथ एटॉमिक मास भी बढ़ रहा है, दोनों फैक्टर इंक्रीज हो रहे हैं. लेकिन जब एग्जैक्ट प्रैक्टिकली देखा जाता है व्हिच इंक्रीजमेंट इज मोर एज कंपेयर टू अदर, तो मास इंक्रीजमेंट इज डोमिनेंट देन वॉल्यूम इंक्रीजमेंट. तो वॉल्यूम जिस रेशियो में बढ़ता है उसके कहीं ज्यादा अमाउंट में मास इंक्रीज होता है, सो दैट डेंसिटी किस पे डिपेंड हुआ? मास पे. तो देख सकते हो डेंसिटी और मास कैसे हैं? डायरेक्टली रिलेटेड. तो हम डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाते वक्त स्टूडेंट किससे डिसाइड करेंगे? मास से. डाउन द ग्रुप मास इंक्रीजेस, सो दैट डेंसिटी आल्सो व्हाट? इंक्रीजेस. अंडरस्टैंड? क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके. तो डाउन द ग्रुप जाते वक्त डेंसिटी इंक्रीज होता है, बट यहां पर मैं इसको राउंड कर दूंगा. राउंड मतलब समझ लेना है वहां पर एक्सेप्शन आ गया. यहां पर क्लियर दिख रहा है आपको? यस. यहां पर राउंड मींस इसमें कुछ तो एक्सेप्शन है. वो जो एक्सेप्शन होता है स्टूडेंट्स, ये है सोडियम और पोटेशियम में. सोडियम एंड पोटेशियम. तो देखिए यहां पर अपना लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम. तो ये दोनों का आपको रिवर्स करना है. रिवर्स करना है मतलब यहां से यहां जाते हो डेंसिटी इंक्रीज होती है, तो इससे इसका डेंसिटी ज्यादा चाहिए था, बट पोटेशियम हैविंग प्रैक्टिकली लो डेंसिटी देन सोडियम. तो पोटेशियम का डेंसिटी सोडियम से क्या होता है? लोअर होता है, ड्यू टू इट्स फिजिकल नेचर. फिजिकली वो मिलता ही ऐसे कि डेंसिटी एक्सपेरिमेंटली इसका कम है इससे. तो यहां पर हमने घुमा देना है. तो इसका परफेक्ट जो ऑर्डर रहेगा डेंसिटी का वो लिखते हैं स्टूडेंट्स. देखिए डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा? नीचे जाते वक्त इंक्रीज हो रहा है, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम. डेंसिटी इंक्रीज ऐसे होना चाहिए था. यस. बस किसको अपोजिट कर देना आपको? पोटेशियम और सोडियम को. राइट फर्स्ट सोडियम एंड देन राइट फर्स्ट पोटेशियम एंड देन सोडियम. तो देखिए लिथियम से ज्यादा होना चाहिए, फिर पोटेशियम का आ गया, फिर सोडियम का रिवर्स कर दिया. नेक्स्ट रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. Understand? This is detail about atomic and the physical property strength variation in a group first element. तो ये ऑर्डर है आपका एटॉमिक रेडियस आयोनिक रेडियस का. मैंने आपसे पूछा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है ना, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, मतलब ऐसा ऑर्डर रहेगा. करेक्ट? तो यही ऑर्डर है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट. डेंसिटी में ऑर्डर चाहिए था इंक्रीजेस, बट एक्सेप्शन आ गया सोडियम और पोटेशियम में. दिस इज द करेक्ट एंड द फाइनल ऑर्डर ऑफ डेंसिटी वेरिएशन. अंडरस्टैंड? ओके. तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा यहां से क्वेश्चंस होते हैं जो इस तरीके से डिटेल स्टडी करेगा उसी को कॉम्पिटिटिव व्यू क्रैक करने में दिक्कत नहीं आएगी स्टूडेंट्स. बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होंगे. एक्सप्लेन एटॉमिक रेडियस वेरिएशन, तो डेफिनेशन लिखो, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, ऑर्डर लिखो, हो गए 2 मार्क्स के लिए कंसेप्ट. तो फॉर जेईई नीट या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ग्रुप फर्स्ट का वेरिएशन इस तरीके से स्टडी कीजिए अकॉर्डिंग टू माय नोट्स पैटर्न. ऐसा आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, कोई नोट्स में नहीं मिलेगा.
ये मेरा सेल्फ का नोट्स है, इस तरीके से सीखना है आपको, आसान भी जाएगा और हर कंसेप्ट क्लियर होगा। यस, सिमिलरली चलते हैं स्टूडेंट्स हम अब ग्रुप सेकंड की ओर। उम्मीद है यहां तक क्लियर है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोटबुक में नोट्स बना सकते हो। ऑर्डर हर एक के लिख सकते हो इसे स्टूडेंट्स, क्लियर? यही ऑर्डर होगा, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस। दिस इज ऑर्डर फॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, तीनों का ये ऑर्डर है और डेंसिटी का ऑर्डर यहाँ पे लिखा है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कौन सी? फर्स्ट, बिकॉज ग्रुप फर्स्ट का कॉन्फिगरेशन होता है वैलेंस NS1, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल, तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया यानी फर्स्ट, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ये वेरिएशन होता है। अंडरस्टैंड? चलते स्टूडेंट्स ग्रुप सेकंड की ओर। ग्रुप सेकंड में ज्यादा एक्सेप्शंस है, जो भी अपने को कंसेप्ट क्लियर चाहिए। चलते स्टूडेंट सेकंड पार्ट, ग्रुप 2, दैट इज Roman 2A, which is called alkaline earth metals. Elements. Next, atomic radius. Next one, ionic radius. Group second having configuration NS2, बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके लिए इसके 2 आयोनाइजेशन एंथैल्पी आ गए। If remove first electron, it carries +1. If we remove second electron, it carries +2. Yes, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऐसी बात होगी इसमें। तो नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूं मैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी IE, तो इसमें लिखूंगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है ना बच्चों? ओके। नेक्स्ट, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, और फिर बात करेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। पहले ये प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। वी नो रेडियम इज द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। We know again same concept. As we move from down the group, beryllium to radium, atomic number increases, electron increases in new and new shells. As shell number increases, atomic radius also increases. As atomic radius increases, ionic radius also increases. तो दोनों का ऑर्डर अगर अपने को लिखना है स्टूडेंट्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. This is the order of atomic radius as well as ionic radius. Next, ionization enthalpy. We know ionization enthalpy inversely proportional to atomic radius. फिर चाहे वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो या सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो, इन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे क्या होना चाहिए? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज सो दैट दिस वन डिक्रीजेस, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी आल्सो डिक्रीजेस। ऐसे होना चाहिए था, बट इसको कर दिया राउंड, इसको कर दिया राउंड, मतलब यहां पर कुछ एक्सेप्शन हो रहा है, कुछ वेरिएशन आ रहा है, और वो वेरिएशन होता है स्टूडेंट्स बेरियम और रेडियम में, बेरियम और रेडियम में। तो यहां पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, जनरली डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए था? डिक्रीज। तो इसका हाइयर लोअर 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 होता जा रहा है, तो इसका सबसे क्या चाहिए? लोअर, बट रेडियम का ग्रेटर देन होता है बेरियम। रेडियम का क्या होता है? ग्रेटर देन बेरियम। अब देखिए हम ऑर्डर कैसे लिख रहा हूं, नीचे जाते हो थोड़ा डिक्रीज, मतलब ऐसे इंक्रीज होना चाहिए था। तो बेरिलियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ग्रेटर देन कैल्शियम, कैल्शियम ग्रेटर देन स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम ग्रेटर देन बेरियम, बेरियम ग्रेटर देन रेडियम, ऐसे होना चाहिए था। बट एक्सेप्शनली क्या होता है? रेडियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ा ज्यादा होता है स्टूडेंट्स बेरियम से। अंडरस्टैंड? दिस इज इंपॉर्टेंट ऑर्डर। अब ये इसलिए होता है स्टूडेंट्स, आगे चल के जब हम डी एंड ए ब्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे आगे चल के बहुत डिटेल में, तब इसमें लैंथेनाइड
कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। इसमें जो f ऑर्बिटल होती है इसके कंसेप्ट की वजह से ऐसे होता है, जो सिर्फ आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट, सेकंड में भी सेम वेरिएशन होता है। बेरिलियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन कैल्शियम ग्रेटर देन स्ट्रोंशियम ग्रेटर देन बेरियम, बट बेरियम हैविंग लेस सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन रेडियम। क्लियर? तो ऑर्डर आपको इसके मिल गए स्टूडेंट्स। तो ऑर्डर अगर दोनों का लिखना है आपको तो ऑर्डर ऐसे लिख सकते हो, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम, ऐसे चाहिए था। बट यहां पर क्या हुआ, रेडियम ग्रेटर देन बेरियम। या इस ऑर्डर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम, इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखूं, रेडियम बेरियम, देख सकते हो। इसका मतलब क्या, रेडियम ग्रेटर देन बेरियम है, यहां पर भी रेडियम ग्रेटर देन बेरियम ही है, करेक्ट? यस। तो देखिए ये ऑर्डर दोनों का मतलब ही ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऑप्शंस कैसे भी घुमाकर आ सकते हैं, लिखने का तरीका आना चाहिए आपको। यस, ओके। दिस इज इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट हो या फिर सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर? नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। बोलिए, डाउन द ग्रुप अगर एटॉमिक रेडियस हो रहा है इंक्रीज तो ये क्या होना चाहिए, डिक्रीजेस। यस, कोई एक्सेप्शन नहीं है, जनरली डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीजेस। ओके, यस। तो यहां पर हो गए 1 2 3 4 प्रॉपर्टीज। तो एक्सेप्शन कहां पर आया स्टूडेंट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। अब नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी है, ये दोनों में भी एक्सेप्शंस है, इसकी बात करते हैं अब। ओके, क्लियर दिख रहा है कि देखिए यहां तक? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं स्टूडेंट्स हम, मेल्टिंग पॉइंट। अब जनरली जो डाउन द ग्रुप जाते हो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। साइज बढ़ रहा है तो हमने देखा था ग्रुप फर्स्ट में मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ था, जनरली डाउन द ग्रुप जाते वक्त डिक्रीजेस। बट एक्सेप्शन, यहां पे ऑर्डर ही कुछ अलग मिलती है। जो ऑर्डर आपको लर्न करना जरूरी है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से आती है जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखिए क्या होता है। सबसे हायर होता है मेल्टिंग पॉइंट बेरिलियम। इस मैग्नीशियम को सबसे लास्ट में रखना है, इसको ड्रॉप कीजिए थोड़ी देर। बेरिलियम देन कैल्शियम देन स्ट्रोंशियम देन बेरियम देन रेडियम, अब कौन रहा लास्ट में, मैग्नीशियम। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल वैल्यू से जो आता है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। सबसे मेल्टिंग पॉइंट हायर बेरिलियम देन कैल्शियम देन स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम एंड लास्ट में मैग्नीशियम। ट्रिक समझा कैसे कैसे ध्यान में रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या करना है आपको, ये फर्स्ट बस ये लास्ट में रखना है। बेरिलियम इसको ड्रॉप कर दिया, लास्ट में रख दिया, बेरिलियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम एंड लास्ट वन मैग्नीशियम। अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, गुड। अब आते हैं स्टूडेंट लास्ट, डेंसिटी। डेंसिटी में भी एक्सेप्शन है, डाउन द ग्रुप अभी देखा था हमने, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डाउन द ग्रुप वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप मास भी इंक्रीज होता है, बट मास इंक्रीजमेंट is more dominant than volume, so that density directly decided from mass. तो mass increases so that density also होना चाहिए increases। फिर से exception। अब इसका ऑर्डर कैसे लिखना है देखिए, ऐसा डेंसिटी डिक्रीज होता है और फिर ऐसा डेंसिटी इंक्रीज होता है। तो हायर डेंसिटी है रेडियम, इसका ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, डेंसिटी ऑर्डर रेडियम बेरियम स्ट्रोंशियम। देखिए यहां तक क्लियर है, ऐसे जा रहे हैं, रेडियम हैविंग मोर डेंसिटी देन बेरियम, बेरियम हैविंग मोर डेंसिटी देन स्ट्रोंशियम। अब ऊपर से आना है, फिर होता है बेरिलियम फिर मैग्नीशियम और फिर कैल्शियम। रेडियम बेरियम स्ट्रोंशियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डेंसिटी, अकॉर्डिंग टू दैट दिस ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड? ओके, तो स्टूडेंट्स लेक्चर 2 में आज हमने एटॉमिक एंड फिजिकल ट्रेंड्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड डिटेल में डिस्कस किया। इसके अच्छे से नोट्स बनाइए, आपके नोटबुक में ऐसे नोट्स रहेंगे तभी मजा आएगा आपको कॉम्पिटिटिव व्यू प्रिपरेशन के लिए। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट।